welcome to SIA Weekly Roundup. We've got here with us Shahid Kardar, Asad Ali Shah, Salman Shah, and hopefully Shabbar Zaidi will join us soon. अच्छा जी, इस वीक जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है बजट। तो मैं सोच रहा था कि यहां से हम शुरू करें कि आप लोग सब बड़े ब्रीफली अपने बजट पे कमेंट्स दे दें। Let's say if you take a minute each to give your comments on the budget, then we can get into discussing two things. What are the opportunities missed in the budget? What do you expect could have been done in the budget? ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि हम हर साल बजट ऐसा ही बनाते हैं, कोई डिफरेंट है। ये दो चीजें इसके बाद डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज ये कि अगर आप लोग बजट बना रहे होते तो क्या डिफरेंट करते हैं। Kind of related, but let's discuss that. तो पहले, who would like to take the first shot at the budget? But quick, I'm 1 happy minute, to please. go. Go ahead, I'm- Shahid. देखिए ahead, जी, Shahid. कुछ चीजें तो बड़ी ऑब्वियस ही हो गई हैं। रूटीन है, नॉन इमेजिनेटिव है, बीटन ट्रैक है ये। और डिस्पाइट व्हाट आई थिंक वी ऑल एग्री कि कोई पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर्स नहीं और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस फ्रैंकली आर क्वाइट सबड्यूड हैं। ठीक है, तेल की अब इस वक्त बिकॉज ऑफ ईरान मसला बना हुआ है। So vision and considering the high level of employment, coherent growth strategy missing, and that to me is one of the key ones. There are many contradictory proposals, उसमें बाद में बात कर लेंगे। Remains soft on informality, wholesale, retail वैसे के वैसे छोड़ दिए गए, while we continue to squeeze existing taxpayers and formal entities. More importantly, continues to be focused on taxation with a little by way of really doing anything on expenditures. और इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। साइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ले लें, सेल्फ फिक्स्ड प्रिविलेजेस ले लें, वाइंडिंग अप ऑफ मेनी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस कर लें, which is now costing 1 trillion annually, and how you bring down the cost of business के वो regulatory environment or generally other things. Next, it again taxes transactions. So it's really raising the cost of doing business and effective competitiveness, as I see it. I'll move on to one thing else. वो अब salaries of government servants, apart from the optics के वो जो उन लोगों ने किए हैं for parliamentarians और अब वो रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था. But the salaries of government servants really, without even adjusting for the kind of oversized public sector we have, the salaries have been raised by 10%. Inflation खुद कहते हैं पिछले साल के 4.3% है और अगले साल का एस्टिमेट लगा रहे हैं 7.5%. So ऑप्टिक्स खराब है कि नो रिविजन इन द मिनिमम वेज वो कहलाता बहस है, उस पर नहीं जाता. It is penalizes, in my opinion, risk-averse investments of even small savers. उसका टैक्स रेट आपने 20% कर दिया and you're forcing them to go to speculative activities. तो जो हंस रहे होंगे will be brokers, states and real estate dealers. फिर वो discretionary power बढ़ा दिया even to the extent of arresting for minor offenses. ये मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ है कि जी they will be given the powers of police officers. फिर ये है कि inconsistencies है, let's not go into that at the moment. Taxation of the likes of Amazon, in my opinion, will have to be reversed. ये copy paste है of the Indian tax law. और उसमें problem ये है, देखिए ना, let me explain very quickly. अगर मैं वो प्लांट एंड मशीनरी किसी से इंपोर्ट करता हूँ, वो टैक्स तो नहीं देता पाकिस्तान को ना, मैं दूंगा ना एज द बायर. इट्स द सेम थिंग एज बाइंग अ बुक फ्रॉम Amazon. Amazon पे आप किस चीज का टैक्स लगाएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आई. सो फ्रैंकली यू विल हैव टू रिवर्स इट. इंडिया ने कर दिया इस साल के अपने बजट में. दे ऑल्सो ट्राइड दैट, हमने कॉपी पेस्ट किया था. फाइनली रिव्यू ऑन रिडक्शन कस्टम ड्यूटीज, एक तो दो मसले. इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. हम तीनों चारों जो इस वक्त हैं यहाँ बैठे हुए, वी ऑल हैव द सेम व्यू. इट्स जस्ट दैट आई थिंक हमें नहीं पता कि अगले 5 साल इस मुल्क में तो ये नहीं पता होता कि कल क्या होना है. सो टू मी, एंड आई जस्ट क्विकली क्लोज ऑन दिस, कि ये जो नॉन टैरिफ इशूज है ना रिलेटिंग टू ये इंडस्ट्रीज जिनको हम चाहते हैं कि कंपेटिटिव हो जाए और पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स, देखिए वो हम भूल जाते हैं ज़मीन की और बिजली की कीमत,
ये जो जाबराना हमारी रेगुलेटरी माहौल है और जाबराना एफबीआर है, उसके बाद आप देख लें बेहिस और नाअहल ब्यूरोक्रेसी है। हम चाहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट नहीं हो सकती। हाँ, so they are basically saying you live with it. Then you have a cost of labor which really when adjusted for quality is a major issue, और cost of domestic inputs जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी जाएंगी तो वो प्रोटेक्शन की वजह से बहुत है। सो व्हाट एम आई सेइंग, जस्ट टू कम टू क्लोजर ऑन दिस वेरी क्विकली, कि जी अगर तो आपने इंपोर्ट खोलनी, और हम समझते हैं बिल्कुल खोलनी चाहिए, तो द इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, द इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट, उस पर मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, और मैं चाहता हूं कि मैं समझूं कि जी उसका क्या। मैंने बाय द वे समवन स्टेट बैंक से भी बात की, उन्हें कहा जी ये सारा काम वर्ल्ड बैंक ने किया है, बट वी हैव नॉट सीन एनीथिंग। सो वो जो, तो फिर आप क्या करेंगे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, या आर यू गोइंग टू अलाउ द एक्सचेंज रेट टू बी एडजस्टेड फॉर ऑल द अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स जो जिनका मैंने जिक्र किया, इफ यू रियली वांट टू मेंटेन competitiveness. So I'll come to a stop. I've done more than 1 minute. I've done roughly 2 minutes, but my apologies. जी, गो अहेड शाह जी। जी, मेरा तो बड़ा सिंपल सा टेक है कि फॉर many years, for decades, I think, especially when we are in IMF program, so the entire focus is taxation, 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 excess taxation rate, more tax on those who are already paying the tax. With the result, the cost is stagnation. So it's taxation to stagnation. पिछले 3 साल में आपकी जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज तकरीबन 1.5-1.6% आ रही है, बट एज यू नो इस साल का जो 2.7% ग्रोथ है वो भी 3 क्वार्टर्स में तो आपका ग्रोथ 1.6-1.7% है। अब उसमें लास्ट क्वार्टर में जो एस्टिमेट होता है उसको कोई 4.6% estimate किया है on an arbitrary basis. And also, we know that the 2 commodity producing sectors, the large scale manufacturing has been contracting for the last 3 years. This will be contraction hai. Then agriculture, crops, जो agriculture main sector है, it's down by 13%. Probably unprecedented, one of the lowest, negative growth in agriculture. But that has been compensated, through overestimation of livestock. And as you may have seen, कि लाइवस्टॉक जो है वो पिछले 15 साल से उसकी कोई सर्वे तो हुआ नहीं है, वो हर साल 7-8% सर्टेन परसेंटेज उसको प्रोजेक्ट करके बढ़ा दिया जाता है, विद द रिजल्ट अब लाइवस्टॉक इज नाउ 15% ऑफ योर जीडीपी, contribution to GDP is 15%, and your entire manufacturing, the large scale as well as small scale and construction मिला के उसकी contribution जो है वो अब 11% बनती है to the GDP. So I think this data and the figures produced by the National Accounts Committee have become ridiculous. Large scale manufacturing आपकी shrink हो रही है, और आप कह रहे हैं कि SMEs जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो 5-6% बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन, कल वो आबाद के जो चेयरमैन है वो भी आए हुए थे इसमें ICMAP के सेमिनार में, तो ही वाज सेइंग कि वी वर ऑल सरप्राइज के कंस्ट्रक्शन को 6.6% से ग्रोथ दिखा रहे हैं, जबकि स्टील has contracted, cement has contracted, there is no construction activity. तो एक तो मतलब डेटा
का भी बड़ा प्रॉब्लम है और हम मेरे ख्याल में बिल्कुल सच भी नहीं बोल रहे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर ये जो ग्रोथ रेट है 2.7%, मेरे हिसाब से तो ये 1.7% से भी नहीं होगा इस साल हमारा। एंड विद द रिजल्ट, असद साहब, बजट के बारे में क्या ख्याल है? जी, Are you अब happy कमिंग टू with द it? बजट, हाँ, बजट देखें, बजट में जैसे मैंने कहा कि अगेन कुछ ड्रेकोनियन मेजर्स हैं जो शायद ने भी बात की, काफ़ी अनोमलीज भी हैं, बट बेसिकली द एंटायर फोकस इज यू नो टैक्सेशन टूवर्ड्स स्टैग्नेशन। मतलब हर चीज पे टैक्स जो है ना वो हम विदहोल्डिंग टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लगा दिया है आपने, लेकिन वो कलेक्ट तो नहीं होगी, इन्फोर्समेंट तो नहीं होगी। तो वही होगा कि जो जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, सैलरी टैक्स हो गया, या जो सेक्टर्स जो हैं ऑलरेडी दे रहे हैं, मल्टीनेशनल्स एंड टेलीकॉम एंड बैंकिंग सेक्टर एंड फ्यू सेक्टर्स, वही ज्यादा उनसे एक्सट्रैक्ट होगा। एंड चले, इस साल फिर ठीक है। एडिशनल टैक्सेशन का कोई 400 बिलियन का वो भी है। तो देर इज नो एफर्ट टू कंटेन जी, एंड कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। चले, लेट्स गेट देखिए, सलमान शाह से माय मिलते हैं। फाइनल फाइनल थिंग इज कि पूरी दुनिया इस हम्म, वक्त जो है इन द 21st सेंचुरी, द फिलोसफी इज टू गेट मोर फ्रॉम लेस। हम्म, You know, you have to make the government productive, reduce the expenditure, and get better services. Rather than doing that, we are killing the private sector, जो कि मतलब ऑलरेडी जहां पर इन्वेस्टमेंट, जो शाह साहब भी कहते हैं कि आप देखें ना, वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 13 to 14%। वो भी सारी पब्लिक सेक्टर में जो वेस्ट होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप निकाल दें और पब्लिक सेक्टर निकाल दें, तो प्राइवेट सेक्टर में तो कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही। तो मतलब दैट इज द रीजन कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ इज बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इकोनॉमिक सर्वे में तो 6.3% इन द एब्सेंस ऑफ सर्वे हर साल दिखा दिया जाता है। वो एस्टिमेट्स हैं कि 20% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है आपकी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस हैज नॉट वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके जी, सलमान शाह साहब बताइए आपका क्या ख्याल है? Gee, Nadeem, I think I agree with all the viewpoints, starting with Shahid and Asad. I think all of these in total, it is a disastrous budget. But in my mind, ये जो weaponization of FDR will certainly, I think, have consequences. और उसमें ये है कि अगर आपने तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं इकोनॉमी की, ऑल मेजर वंस, नॉट इवन आई मीन मेजर वंस, most big transactions, from automobiles to houses to land purchases, etc., वो आपने FDR का वीटो ऊपर लगा दिया है। And coupled with the fact that FDR has now powers to arrest anybody without taking it to court and have them arrested within the FDR hierarchy, में ही वो सारी चीजें हो सकती हैं। और I think this will have a very chilling effect on economic activity in the country. And unless these measures are revoked in the parliament, तो ये बड़ा dangerous मामला लग रहा है। ये मुझे कुछ it reminds me of मुशर्रफ के टाइम पे भी FBR का बहुत ज्यादा शोर मचा था, एंड एक टैक्स सर्वे करवाया गया था। उस वक्त जो थे हर दुकान पे और हर घर में टैक्स वाला विद द फौजी
went there, and the result was that the economy went into a coma. And after a few months, you had to reverse everything, and then you had to actually ban the uh, government entities to interact with the private sector, और FPR क्या हो, EOBI, ये जितने थे जो जाके वहाँ पे एक किस्म की एक्सटॉर्शन करते थे, उनको बंद कर दिया गया था, एंड सेल्फ असेसमेंट का एक को सामने लाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि आप जो भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, FPR will accept it and issue you a kind of acknowledgement. And then for 3 or 4 years, there will be not even any audits until the machinery for the audits is done properly and it is independent of FPR. And वो सारा निज़ाम जो था वो चला, उसमें खासी buoyancy आई टैक्सेस वगैरह में, लेकिन I think the process ठीक was reversed in 2008, और उसके बाद ये एक coerciveness जो है वो चलती जा रही है। IMF एक तरफ IMF खड़ा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक खड़ा है, तीसरी तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान में OECD का निज़ाम होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और वो निज़ाम और वैल्यू एडेड टैक्स जो आपने लगाया हुआ है, विच इज़ रियली अ किलर इन द सेंस कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के शुरू में ही आप टैक्स वालों को लगा शाह जी, देते हैं, वो शाह जी तमाम देखें, चीजें जो हैं वो ठीक। आपने खत्म कर दी। ठीक। So weaponization of FBR, ठीक, I think, is what is going to ओके, मुझे 3-4 पॉइंट यहाँ नजर आए हैं, लेट्स कमेंट ऑन दैट फॉर अ लिटिल व्हाइल। एक तो है, असद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसको मैं कहूँगा ऐसे, टैक्स स्टैग्नेशन आ गई है इस मुल्क में, आगे आ गई है, पिछले 50 साल से है। टैक्स लगाते हैं, स्टैग्नेशन बर्दाश्त करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, फिर रोते हैं कि यार बजट वो ग्रोथ गिर गई है, फिर हम उसको धक्का जोरी लाइफ स्टॉक को बढ़ा के, SME को बढ़ा के हम उसको 2.5-3 पे ले जाते हैं, बट दैट स्टिल बिलो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सो वी आर सफरिंग, ओके, डजंट मैटर। दूसरी चीज वेपनाइजेशन, आप बिल्कुल ठीक करें, FPR की वेपनाइजेशन बढ़ी है, बट बताइए, यू ऑल बीन एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, all of you have said this budget lacks imagination. What is the problem? Why is it that the government lacks imagination? दूसरी चीज, I think you economists or accountants etc have to take the blame too. ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट अकाउंटेंट्स का फोरम है, बताइए, रोज अखबारों में, रोज टीवी पे, रोज एवरी डे somebody is sitting there, eminent person, and saying कि भाई टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, टैक्स नेट नहीं बढ़ा, टैक्स नेट नहीं बढ़ा। अब लोग भी इस पे आदी हो गए, इट्स बिकम लाइक अ कलमा नाउ कि टैक्स नेट नहीं बढ़ा, एवरीबडी इज यूजिंग टैक्स नेट नहीं बढ़ा। ठीक है, हर बंदा इसको रटा हुआ है और हर एंकर भी ये कहता है, तो वो ठीक कह रहे हैं भाई, फिर टैक्स नेट बढ़ाओ। शायद ने भी कहा इनफॉर्मलाइजेशन को रोको। तो अगर आप लोग ये चाहते, That's not what I said. मैंने ये कहा कि आप दूसरे को मार रहे हैं, इनफॉर्मल पे आप सॉफ्ट है। वही एग्जैक्टली ये नहीं, नैरेटिव का but पार्ट है, the point you are ये narrative missing का is part है। कि आप दूसरे को कह रहे हैं कि तू React to what बेवकूफ I'm था। saying. React to what I'm saying. My नहीं, point is very अच्छा, simple. okay, My चलो, point is very simple. That there is a tax stagnation in the economy. ठीक। There is a tax weaponization in the economy. All of you have said it. I'm not saying anything of my own. हाँ, And there is no imagination in the budget. ठीक है, हर बार हम सिटी बैंकर लेके आते हैं, सिटी बैंकर वही बजट में पेश करता है, हम खुश हो जाते हैं, तालियां बजा देते हैं। अब तो खैर बजट खत्म भी हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए, यू बीन इन दिस नहीं, पोजीशन। आई थिंक ये सिटी बैंकर का नहीं है प्रॉब्लम। आप देखें, मिफ्ता इस्माइल ने ये बजट दिया, इसाक डार ने ये बजट दिया, अब ये औरी का औरी 1 and औरी 2, इट्स द सेम बजट। इट इज द सिस्टम को डीरेल करने का किसी में एपिटाइट नहीं है। सिस्टम Who is to blame? Who is to blame? एक बात तो ये है ना कि जब जो बातें हम करते हैं कि हुकूमत के अखराजात कम करें,
मिनिस्ट्रीज कम करें, डिपार्टमेंट्स बंद करें, डीरेगुलेट करें, तो इन इन सारों को जो इफेक्टीज हैं इसके, दैट इज द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज द पॉलिटिशियन, that is, I guess, the establishment and all these people who run the system. अब वो disruption नहीं चाहते, और एंड जो चीजें अब आपने करनी है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड changing the incentives of the economy, they need a bit of a disruption. जो शादी वो ठीक है, शादी वो उस पे आते हैं। पहले मुझे बताइए, you were the finance minister, Shahid was the governor of State Bank, Asad Saab has been finance minister of the province. Do we have the capacity to make a good budget? Do we have the ability to make a good budget? Do we have enough research in the system? मुझे तो नहीं लगता research के बगैर कुछ बन सकता है। Do we have enough research in the system? Do we have economists in the system, provincial या federal? Do we have any people who can make a budget? या हमारे पास वही bureaucrats हैं जो लेके आ जाते हैं चीजें, फिर कोई बात आ जाती है? बताइए। देखें, नहीं, आई थिंक कि आप दुनिया के जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उनको आप वर्ल्ड बैंक के और IMF के जरिए यहाँ पे लाते हैं, वो आके हमें लेक्चर देते हैं। अगर आप देखें हमारे पाकिस्तानी जी, यानी कि शादी, you are relying on the IMF to make your budget. No, I'm not relying on the IMF. I'm saying कि वो आके एडवाइस जो देते हैं, जिसमें मसूद भी है, जिसमें एहतशाम भी है। नहीं, मसूद एहतशाम नहीं आते शादी, ये गलत बात है। वो तो बिल्कुल आते हैं। नहीं 10-15 साल FBR के बिल्कुल, ये जितने भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के मसले मसाइल हैं, उसमें इन सब का इनपुट है, every one of them. नहीं, आप मुझे बताएं, एहतशाम नहीं आया कितने दफा? एहतशाम आया था 2008 के बाद, नहीं आया। आया 2008 के बाद, नहीं, बता रहा हूँ नहीं आया, बता रहा हूँ। उसका नेमल बदल कोई आ गया होगा। आई एम इन टच विद हिम, नहीं आया। मसूद भी 2015 के बाद नहीं आया। वो मसूद तो आता था बिकॉज इज IMF डायरेक्टर, ठीक है ना, मान गए। बट पॉइंट हियर वी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। असद साहब ये बताइए, एंड वो एडवाइस वहां से ही आ रही है, ये ना समझो कि कोई और। सब मुझे बताइए, बात बड़ी सिंपल है। मैं ये कहता हूं, हम जो हायर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, देखें, आई हैव बीन इन मेनी कंट्रीज फ्रॉम द IMF साइड, ठीक है। आई हैव मेट मेनी गुड एंड बैड मिनिस्टर्स। जो गुड मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल वास्लाव क्लाउस जो था चेकोस्लोवाकिया का, वो कहते दिस इज माय बजट, आर्ग्यू करता था हमसे। नहीं, जब मैं IMF की तरफ से गया तो हमने उसे प्राइवेटाइजेशन में कहा कि भाई तू स्टॉक मार्केट पे ना डाल, तू वैसे बेच दे सेठों को। उसने कहा मैं नहीं करता, आई एम गोइंग टू डू इट माय वे। उसने तड़ी से कहा आई एम गोइंग टू डू इट माय वे, यू ऑब्जेक्ट, गो टू हेल। हम इनको हायर करते नेगोशिएशन के लिए, हम इनको हायर तो नहीं करते कि उल्टा लेट जाए। बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग। वो बात यह है ना कि इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट। आप सिंपल सी चीज है कि 18% आपकी सेल्स टैक्स है और तकरीबन 45-50% आपकी डायरेक्ट टैक्स है। अब ये है छोटा सा सेक्टर जो कि फॉर्मल सेक्टर है, जो कि इसमें फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि ये टैक्स नहीं देते। इनफॉर्मल सेक्टर में वो 18% भी नहीं देते, और अपना इनकम टैक्स भी नहीं देते, बाकी विद होल्डिंग टैक्सेस में भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि ये फॉर्मल सेक्टर जो है वो कैसे compete कर सकता है? ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वाइडन टैक्स नेट को क्यों नहीं होती, बावजूद इसके ये ड्रैकोनियन मेजर से और थानेदारी से नहीं होगी, ये पॉलिसी से होगी ना। आप पूरी दुनिया टैक्स रेट जो है वो कम कर रही है। हम वी आर अ हार्डेस्ट एंड मोर डिफिकल्ट टफेस्ट इन्वायरमेंट है यहाँ पर, जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। वी आर एन इन्वेस्टमेंट रिपेलिंग इकोनॉमी। देखिए ना, 30% आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको पुश बैक करना चाह रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एग्री विद यू 100%, वी आर इन्वेस्टमेंट रिपेलेंट अकाउंटेंट। बट ICAP आपकी जो एजेंसी है, जो भी आपकी, सॉरी एजेंसी नहीं, एसोसिएशन है, वो रोज कहती है टैक्स बढ़ाओ,
रोज कहती है टैक्स बढ़ाओ। नहीं, टैक्स रेट बढ़ाने के लिए नहीं कहते, क्या वो भी कहते नहीं कहते। वो भी कहते हैं टैक्स रेट। कल परसों कल आईसीएमएपी में मैं था, परसों वहां भी था। बहरहाल द पॉइंट इज, आई डोंट नो कि वो वहां पर कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, लेकिन द थिंग इज, बात तो बड़ी सिंपल है ना, कि अगर आपने फॉर्मल सेक्टर में देखें, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगी जब आपकी, और टैक्स भी तब बढ़ेगी जब मोर बिजनेसेस, एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो बात की शायद ने, वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना, और प्लस वी हैव टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू कम इन द फॉर्मल सेक्टर। आप तो फॉर्मल सेक्टर को भी भगा रहे हैं टू इनफॉर्मल सेक्टर। वी आर पुशिंग एवरीबडी टू इनफॉर्मल सेक्टर थ्रू दीज मेजर्स ना। सो हमारा माइंडसेट ये गलत है ना। आप जो है ना, थ्रू टिंकरिंग ऑफ द बजट एंड थ्रू अरेस्ट पावर्स एंड होल्डिंग टैक्सेस जो है वो आप कैसे कर सकते हैं इस तरह से? ठीक। शायद साहब देखो ये इसमें एक नदीम मिनट, सलमान साहब, एक शायद मिनट। साहब की बात सुन लें। हाँ, शायद साहब की बात सुन नहीं, लें। दो तीन चीजें वेरी क्विकली। पर एक तो प्लीज ये कंफर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जी हमारी सोसाइटी जो मांगती है उसको मिल रहा है, फिर रोना क्या? नहीं, हम ये रोज में देखिए, रोज आपने शुरू किया कि जी सारे इकोनॉमिस्ट और सारे, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सामने तीन तो कुछ बैठे हुए हैं ना जो झक मारते रहे हैं, ठीक है ना। सो यस, यू विल गेट अ सर्टेन बॉडी। कुछ लोग हैं जो ये कहते रहते हैं। बात सारी यही है कि दोज आर द वंस हु गेट एक्सेस, और उसकी एक बुनियादी वजह इज योर ओल्ड इंस्टीट्यूशन IMF। आप ये कहते तो मैं पूछ रहा हूं कि उनका एक जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो ढांचा, ये जो फरसूदा और बेढंगा किस्म का टैक्स का निज़ाम है, ये उनकी वॉच में, ये निज़ाम उनने कहीं और दुनिया में देखा है, फरोग करने की कोशिश की है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक बिल्कुल है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो वो असद ने भी बात कर रहा है, आप उस हद तक एग्री भी करें, कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर्मल सेक्टर पे आपने अब जो टैक्स का रेट है वो 60% हो गया, ठीक है। आप उसको खुद कह रहे हैं कि यार बेहतर है कि तू इनफॉर्मल हो जाए, जो असद भी कह रहा है। सो अगर आपने ये निज़ाम ऐसे रखना है, अच्छा, दी इनकंसिस्टेंसीज इन द बजट आर अनबिलीवेबल। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यार नेथन पोर्टर को कहते ना, तो वो बेहतर एक तकरीर के लिए भी कोई निज़ाम को जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो दूर कर देता। मैं अभी दो तीन चीजें मुझे इतनी हंसी आती है। एक तरफ आप कहते हैं हमने नॉन फाइलर खत्म कर दिए, आइंदा कोई नॉन फाइलर नहीं होगा। फिर आप कहते हैं नॉन फाइलर के कैश विड्रॉल्स पे हम 0.8%। यार आप खुद कह रहे हैं, ठीक है। यू लुक एट, नहीं, फिर एक नई इंट्रोड्यूस की है ना कैटेगरी, इनएलिजिबल, एलिजिबल एंड इनएलिजिबल ऑन टॉप ऑफ दैट। और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास सोर्स नहीं है, आपने नॉट ओनली टैक्स रिटर्न फाइल किया है बल्कि उतने पैसे होने चाहिए, तो फिर आप ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना गाड़ी खरीद, यानी इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द इकोनॉमी हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बंद कर दें, मैं उसमें ऐड बंद कर कर दूं देना, मसलन। उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो बात ये है ना कि जो हम बात करते हैं, जाहिर है इट इज नॉट इजी, इट इज सिंपल बट नॉट इजी। जो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप गवर्नमेंट की को स्मार्ट गवर्नमेंट बनाएं, उसकी साइज कम करें, आप डीरेगुलेट करें, आप बिजनेसेस को प्रमोट करें और उनको कन्वीनियंस दें ताकि वो फॉर्मल सेक्टर में आके बिजनेस कर सकें, कुछ इनोवेशन कर सकें, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से आएगा। लेकिन जाहिर है ये करने के लिए जो है ना वो कुछ थिंकिंग करनी पड़ेगी और कुछ रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट में वी आर रिस्क अवर्स ना, हमें 50 मिनिस्टर्स भी रखने हैं, हमें महकमे भी बढ़ाते जाने हैं, एजेंसियां भी बढ़ानी है गवर्नमेंट में, अपना पावर भी कम नहीं करना, अपने पर्क्स भी नहीं कम करने।
तो फिर उस इन सारी इस माइंडसेट के साथ जो है ना, और ये सब किसका काम है? ये बात तो फाइनेंस सिंपल मिनिस्टर का काम है। देखिए, देखिए, बात ये है हम सब नदीम, एक मिनट शाह जी, हम नहीं नहीं, सब एक बार ओरी मुझे भी तो finish, बात ओरी ओरी करते हैं, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर किस लिए होता है अगर ये बातें नहीं करेगा? Can I finish? Good, finish. नहीं, देखें, बात ये है कि जो असद बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बट एक काम आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिसएंगेज एफडीआर, क्योंकि आप ट्रीट करते हैं हर एक को लाइक एंटिटी जो कि एक अकाउंटेंट हायर कर सकती है, जो कि एक बैलेंस शीट बना सकती है, और जो कि पूरे डॉक्यूमेंट्स रख के उनके सामने पेश कर सकती है और फिर उसको डिफेंड कर सकती है। तो ये निज़ाम नहीं चलेगा, आपको बड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फ्रॉम अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वीएटी टाइप थिंग जो हम स्मॉल बिजनेसेस पे इम्पोज करना चाहते हैं, ये खत्म करें और एक सिंपल टर्नओवर टैक्स का regime चलाएं for a while and focus on minimum intrusion of the government into the economy, फिर हो सकता है। ये तो ठीक। नहीं हो सकता कि एक तरफ आप डीरेगुलेट सारा। अब देखें, आपने रियल एस्टेट को बड़ी मराहत दे दी, वो देने के बाद आपने कहा कि जिसने खरीदो फरोख्त की तो उसको हम जेल में भेज देंगे, तो फिर वो जो आपने मराहत दी है उसका क्या फायदा होगा? सो आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं आपको करनी पड़ेंगी, और यू हैव टू ट्रीट पाकिस्तान नॉट लाइक एन ओईसीडी कंट्री बट लाइक अ वेरी ठीक। प्रिमिटिव कंट्री, जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेट शायद फिनिश नाउ, शायद गो अहेड। नहीं, अच्छा, मैं 2-3 चीजें ऐड कर वेरी क्विकली। देखें, बात क्या है कि वो एक बात सलमान ने की, मैं वो भी ऐड करना चाह रहा था, बट मैं वो कर दूं, फिर बाकी 2-3 छोटी छोटी बातें। देखिए, ये जो एसएमई सेक्टर है ना, अब ये बिकॉज ऑफ द एफबीआर, ये जो फॉर्मल सेक्टर है वो प्रोफेशनल सर्विसेज भी हायर कर लेगा, और लॉयर भी हायर कर लेगा, अकाउंटेंट भी अच्छे रख लेगा। ये जो है ना एसएमई, उसके बस की बात नहीं है, डजंट हैव द wherewithal टू एक्चुअली परफॉर्म दिस। सो दिस रोल ऑफ द एफबीआर अगर तब्दील नहीं होगा तो एसएमई वाला बढ़ भी नहीं सकता है, वो चाहे भी तो वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आ सकेगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो कॉन्ट्रोडिक्शंस की बात हो रही है ना, आप देखें ना, टू गिव यू अनदर एग्जांपल, जस्ट टू, एक तरफ हम कहते हैं हमने डिजिटलाइजेशन करनी है, उसके बाद हमने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, डोमेस्टिक की बात कर, हम उस पर टैक्स लगाएंगे, पर जो नॉन टैक्स पेइंग रिटेलर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर मैं ये जस्ट टू हाईलाइट, जो रियल एस्टेट की बात की, उसमें 2 और एडिशन। आपने कहा जी बायर को ये इंसेंटिव है, सेलर को कोई नहीं है, रीड्स को है, उनको भी बीच में से निकाल दिया। सो दैट्स अनदर एरिया वेयर जो सलमान कह रहा है, द ट्रांजैक्शन कैनॉट टेक प्लेस। एंड फाइनली इन दिस एरिया, देखिए, उसकी तरफ इनएलिजिबल वालों की तरफ जिक्र किया असद ने, वो कह रहे हैं आप अकाउंट नहीं रख सकते, बट साथ कह रहे हैं हम तुम्हारा अकाउंट हम भी मेंटेन करेंगे। भाई, उसको आप कह रहे हो तुम अकाउंट रख नहीं सकते, तो मेंटेन कहां से करोगे? सो यू नो दिस लैक ऑफ क्लैरिटी। और आप जो हमसे पूछ रहे थे कि आप हुकूमत में सारे रहे हैं, आपने क्या किया है, मैं आपको याद करा दूं, आप चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। आपके जमाने में जो पीएचडीपी जिस पे आप आज रोते हैं, वो पीएचडीपी पे आप कितना करा सके थे? नहीं, पर उसको एक याद मैं करो। जो मैं सवाल पूछ रहा था, आई वाजंट सेइंग कि आप लोग, आई एम सेइंग नहीं नहीं, जनरल बात हो रही थी, No, no, I'm saying जनरल। something very different. अब मुझे याद है और मैं अभी बार बार कहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन does not have the capacity to do what it does. प्लानिंग कमीशन में there is no serious economist, there are no serious analysts, cost benefit तक नहीं वो कर सकते। हम एक तमाशा लगाते हैं CDWP का, वहाँ हम बातें कर लेते हैं, बट देर इज, जब भी पूछो कॉस्ट बेनिफिट का एक अजीब किस्म की चीज आती है। फिर जो लोग बैठे होते हैं, nobody wants to discuss cost benefit, and शायद you were there, सलमान साहब, all of you have been there, we've all been there, कि बजट बनाने के वक्त बजट से 2 हफ्ते पहले मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, एफबीआर वुड पटांग किस्म की चीजें लेके आता है। देर इज नो कॉन्स्टेंट मीटिंग ऑन द बजट। जो होती है वो ईसीसी होती है, और ईसीसी अब सबको पता है कि ईसीसी तो वो जैसे अरशद जमान कहता है कि इट्स एन एग्जेम्पशन एंड कंसेशंस कमेटी। उस पर तो कोई बजट की बात नहीं होती, उस पर कोई बात नहीं होती कि सीरियसली कि क्या हो रहा है। मुझे जो ख्याल आता है, जो मुझे आता है कि वेयर इज आवर नेगोशिएटिंग कैपेसिटी, हमने नेगोशिएट करना है फंड से।
मैं कह रहा हूँ ना, मैंने दुनिया में देखा है लोगों के पास निगोशिएटिंग कैपेसिटी होती है. वेयर डू वी हैव द निगोशिएटिंग कैपेसिटी? फॉर एग्जांपल ये जो टैक्सेस है, हु डज दिस एनालिसिस ऑफ टैक्सेस एंड गोज टू द IMF एंड सेज कि भाई ये हमें पता चला है, ठीक है, और ये हम आपको ऑल्टरनेटिव पेश करेंगे. IMF भी रोता है. मसूद से मेरी बात होती थी जब वो डायरेक्टर था, वो भी कहता था भाई अपना प्रोग्राम ले आओ, हम ला ही नहीं सकते, हमें सख्त ही नहीं है, फिर हम निगोशिएट नहीं करते, फिर हम लेट जाते हैं. तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि डू वी हैव द कैपेसिटी? अभी इसके साथ रिलेटेड ADB ने एक टैक्स रिफॉर्म सेल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. याद रहे कि सलमान साहब के होते हुए वो डिफिड ने बनाया था रिफॉर्म सेल, उसके बाद से फिर जनाब उससे पहले PRSP सेल बना था, उसके बाद फिर पता नहीं कितने प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई 10 15 20 सेल पड़े हैं पुराने, बैठे हुए अभी तक काम कर रहे हैं. नहीं, लोग अभी वही हैं, वो सारे सेल्स वही हैं सारे अभी भी. वही सारे वही नहीं हैं. नहीं, और मैंने ये नहीं बनाया था, टैक्स रिफॉर्म का नहीं बनाया था, मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट नहीं बनाया नहीं, था. अब टैक्स रिफॉर्म का अभी बना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का आपने बनाया था, अभी टैक्स हाँ, रिफॉर्म का. इकोनॉमिक रिफॉर्म का यूनिट बनाया था और उसको मैंने प्राइमरीली डीरेगुलेशन के लिए बनाया था कि इकोनॉमी को कहाँ पे हम कितनी जल्दी कर सकते हैं. इट वाज वेरी गुड कि वी वर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट उसकी डिसकंटिन्यूटी बड़ी जल्दी हुई. एंड आई थिंक कि आप इग्नोर कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुशर्रफ के जमाने में बहुत बेहतर थी. एंड वो मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ, बट और उसकी वजह ये थी कि डिलिबरेटली डीरेगुलेट किया गया था. डिलिबरेटली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक जो तोपें चलती थी वो बंद कर दी गई थी, सीज फायर किया था, और साथ साथ आप रिफॉर्म्स कर रहे थे. लिबरलाइजेशन भी खासी हो चुकी थी. ये जो टैरिफ्स थे ये इतने ऊंचे नहीं थे, पुरानी अब पुरानी नहीं है. बात है. अब वो हर चीज रिवर्स हुई है, और वो यू Agreed. कैन ट्रेस इट बैक टू अ मीटिंग in 2008 in which a presentation was made to the head honcho at that time in the civil side. आपको पता है कि कौन थे, और उसको कहा गया था कि जी हमारे तो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कि हमारे तो हाथ बांध दिए गए हैं. हमारे हाथ अगर आप खोल देंगे तो हम आपको टैक्स भी ला देंगे, हम आपको ग्रोथ भी दे देंगे, हम आपको ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे. तो वो जो मैं थे बिल्कुल मान रहा हूँ. उन्होंने कहा कि हम आपके हाथ खोल देते हैं, गो एंड डू द पूरी वो जो क्या था, जॉनी एप्पल सीड की तरह जाके आप हर जगह पे अपने बीज बोएं. तो आज 2025 में हर जगह पे उनके बीज बोए हुए हैं और शाह वो जी, थैंक्स फॉर फलते द और फूलते हैं. शाह जी, थैंक्स फॉर द हिस्ट्री लेसन. मैं मानता हूँ बिल्कुल. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि माय पॉइंट इज कि देयर वर लॉट ऑफ एक्शंस हैपनिंग और डिलिबरेटली उसको रोका गया है. और ये ना, ये IMF ने नहीं रोका, ये हमने खुद रोका है ये सारा काम. ये बिल्कुल ठीक है. Nadeem, this whole देखिए, question ये of शाह साहब competence. जो बात कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ. देखिए ना, आपके पास केस स्टडी मौजूद है कि इस पीरियड में, मुशर्रफ के पीरियड में, उस वक्त आप देखें टैक्स रेट्स क्या थी और अब क्या है. उससे कम से कम 30-40% हमने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं. विदहोल्डिंग टैक्सेस हमने बढ़ा तो दिए बताइए हैं. हुआ क्या? हमने बताइए हुआ क्या? हमने टैक्स रेट्स भी बढ़ाए हैं और हाथ भी उनके खोल दिए हैं. तो हुआ क्या है कि बिजनेस श्रिंक हो गया. बात यह है कि सिंपल बात है ना, कि आप जब डीरेगुलेट करते हैं और बिजनेस को अलाउ करेंगे कि ग्रो करें, उनको प्रमोट करेंगे, तो फिर प्रोडक्टिविटी भी आएगी, बिजनेस की ग्रोथ से आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी. और ये सब तब होगा जब आपका माइंडसेट चेंज होगा. इट्स बेसिकली आई एम सेइंग कि पॉलिसी भी बाद में आती है, पहले यू नीड टू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट. ठीक है शाह जी. असद साहब देखिए, बात सुनिए. पॉइंट बड़ा सिंपल है. मेरा पॉइंट जो है, एंड आई वांट टू आर्ग्यू अबाउट दिस वेरी क्लियरली. देखिए, ये पुशबैक हुआ, सब कुछ हुआ, हमारी इकोनॉमिस्ट की रग में बैठा हुआ है. इकोनॉमिस्ट है ना, उनकी रग में बैठा हुआ है कि हमें कंट्रोल्स चाहिए, हमें बड़ा स्टेट चाहिए, हमें टैक्स चाहिए. आपको गिनती के इकोनॉमिस्ट मिलते हैं जो इससे डिसएग्री करते हैं, बहुत गिनती के. इसी तरह अकाउंटेंट्स का है. अब मसला ये है कि आपकी हुकूमत में लोग जो भरे हुए हैं वो नॉन इकोनॉमिस्ट, वो एक अजीब किस्म के लोग हैं. तो मैं आपसे बार बार यही पूछना सारों से, शायद सब बताइए
कि ये कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से प्रॉब्लम नदीम, अगर तुम एक मिनट इकोनॉमिस्ट भी ले आओगे ना, शादी अब शायद सब नहीं, कुछ मैं सुनेगा तुम्हें, ये तुमने यार, बड़ी बात अच्छी सुनो बात शादी, लेट की। पुअर शायद टॉक, No, लेट पुअर no, शायद टॉक। आपने एक बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक इट शुड नॉट बी लॉस्ट ओवर हियर। आप अगर इकोनॉमिस्ट भी ले आएंगे, वो भी वो ही रंग में रंगे हुए हैं जो वो ब्यूरोक्रेसी करना चाहती है। सो आर ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी हैज लॉट ऑफ सपोर्टर्स एंड वेल विशर्स आल्सो, और इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप 2-3 इकोनॉमिस्ट वहां डाल देंगे। ये आई एग्री कि टोटल माइंडसेट ऑफ द कंट्री हैज टू चेंज, एंड एक्चुअली द टैक्स पेयर तो आपको कह रहा है कि यार ये निजाम मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सिंपल निजाम दो और मुझे काम करने दो। लेट शायद स्पीक ना, शायद देखिए, दो चीजें। एक तो ये कि इस पे क्या सारी बात यह है कि इस ये एनवायरनमेंट जिसमें ये ब्यूरोक्रेसी जिसको घुसने नहीं देगी, इफ यू नीड टू क्रिएट कैपेसिटी, बाहर से जो लोग ला के इसमें लाने हैं इस सिस्टम में और उनको चलने देना है, आई थिंक ये सियासतदान अगर चाहें तो कर सकते हैं। मैं आई एम टॉक रिफरिंग to not the administration but the executive which has to bring in that kind of change कि यार वो जो कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो लोगों को आप लेके आए इस निज़ाम में जो जकड़ देता। और वो आई एग्री विद सलमान, जो बाहर के एक दो लोग आप लेके आएंगे वो नहीं होगा, विच ऑल्सो ब्रिंग्स अस बैक टू द माइंडसेट। अब आप इस सिस्टम में इन लोगों को कैसे लेके आएंगे? आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन नॉट जस्ट of the fiscal side, or for that matter overall economy side। कोई इदारा आप ले लें, कोई इदारा ले लें जिसमें आप on the basis of merit लोगों को ला सके to be able to compete। and I'll use your example that you always give कि यार अगर अब्दुल सलाम यहाँ पे होता, at best he would have retired as principal government college in grade 20। इस निज़ाम में ये जितनी देर तक कोई आके वो धचका लगा के और डिसरप्ट नहीं करता, जैसे असद भी कह रहा, सलमान भी कह रहा, आप भी कह रहे, मैं भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं करने देगी। जो बाहर वाले अगर आ रहे हैं और उनमें ये इतनी कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इमरान खान आया, हम समझते थे कि वो शायद इस बात को समझ जाएगा क्योंकि बाहर से आया था, वो इसके निज़ाम को उस तरह नहीं समझता था। मैंने उसमें से किसी से पूछा, समवन हु वाज क्लोज टू हिम, कि जी कि क्या हुआ है कि ये बिल्कुल अब उसी निज़ाम में फंसा हुआ। उसने कहा यार ही हैज जस्ट डिस्कवर्ड द डीएमजी। बात ये है कि ये निज़ाम ऐसा है कि इसको बाहर से ही आके इसके जो जकड़ है उसको खोल दिया जाए, अनशैकल इट फ्रॉम द आउटसाइड। अंदर से नहीं हो सकता। और ये सब, और कौन कह रहा है ये आसान है, जैसे सलमान भी कह रहा है। और ये नुस्खा कुछ 70 साल वाला है, कुछ रातों रात तो नहीं ठीक होना, बट किसी को आके इसको एक दफा धक्का देना पड़ेगा और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात आगे चलेगी। बट ये कैसे होगा, योर गेस इज बेटर देन माइन। देखिए, बात सुनिए, कैसे होगा अलग बात है, ठीक है, मान गए बिल्कुल आपकी बात। अब सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी, वो गेट कीपर्स हैं, जिसको मैं कहता हूं गेट कीपर एलीट। 300 बंदा रिक्रूट होता है हर साल, उसमें से पीएस होते हैं 20-25। वो पीएस सारे सेक्रेटरी बनते हैं और वो सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। मैं कहता हूं इस मुल्क में 5 बंदे इकोनॉमी चलाते हैं। एक फाइनेंस सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट, पीएसपीएम, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके बाद चले बहुत से बहुत डिफेंस ले लेके उसका फौज के साथ कुछ होता है तो उसका इतना ताल्लुक नहीं होता। इकोनॉमी में तो ये 3 बंदे, प्लानिंग सेक्रेटरी बिकॉज वो पीएसटीपी कंट्रोल करता है, इनके अलावा बाकी तो कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो इतनी सेंट्रलाइज जहाँ इकोनॉमी हो, और वो बिकॉज दे आर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स, दे कंट्रोल एवरीथिंग। नाउ मुझे बताइए, ये समझने वाली बात है कि क्या ब्यूरोक्रेसी में की चेंजेस चाहिए। इशरत हुसैन साहब 2 बार आए हैं, 6 साल उन्होंने लगाए हैं, किताबें भी लिखी हैं, बट क्वाइट फ्रैंकली आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे उनकी स्कीम ही नहीं समझ आई। इट वाज मच मोर ऑफ द स्टेटस को। व्हाट वुड यू गाइज रिकमेंड, क्या करें ब्यूरोक्रेसी में? मतलब अगर हमने इसको रिफॉर्म करना है, कहाँ से शुरू करें? क्यों जी असद साहब, कोई है आपके पास आइडिया? मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। गुड डिसएग्रीमेंट।
मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को भी खुद हमने खराब किया है ना। ब्यूरोक्रेसी में भी बेहतर लोग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास कल्चर है ना, जो मेरिटोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे तो अपना बंदा चाहिए, कॉम्पिटेंट बंदा थोड़ी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। वो बंदा चाहिए जो मेरी खुशामद करे और मेरी हाँ में हाँ मिलाए, और वो सरवाइव करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। जो मुझे चैलेंज करेगा, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुझे बताएगा कि और थॉट्स भी हैं, तो उसको मैं रखूंगा ही नहीं। तो ये कल्चर है ना। आप विद इन द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, अगर आप सही लोग लगाएं, सही लोग लगते नहीं है यार। शायद भी आपको बता सकते हैं। बात यह है कि इट्स द ओवरऑल माइंडसेट जो हमारी पॉलिटिकल और रूलिंग क्लास है, वो मुझे समझ नहीं आती। कि आप देखें ना, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी आया है 168। मुझे बताएं, 168 कंट्रीज में उसके बाद रह कौन सी जाती है यार? जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168 हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, तकरीबन 22-25 मिलियन आउट ऑफ 50 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे हैं। 40% या 38% जो है बच्चे स्टंटेड हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन जो है उस पर हमने एलोकेशंस बढ़ा दिए हैं। देखें, इट्स नॉट इवन नॉट अ मैटर ऑफ ओनली पुटिंग मोर मनी। आफ्टर 18th दिस 7th NFC, पैसे तो बढ़े, और मैं NFC के फेवर में हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, वो सही बढ़े। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप पैसे वो खर्च सही नहीं करेंगे, वेदर इन फेडरेशन और प्रोविंसेस और एट लोकल लेवल, हमने वो सारे उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगाने हैं जो मुझे फायदा देते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि वो सूबे में हो या फेडरल गवर्नमेंट में हो। बात यह है कि देखिए ना, केस स्टडी है, शाहिद कारदार पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के रहे हैं चेयरमैन, और मैंने इस पर पूरा स्टडी किया हुआ था। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, वो 1200-1500 रुपए पर चाइल्ड में जो खर्चा होता है, उनके आउटकम्स 100% बेटर हैं। और जो पब्लिक सेक्टर में, जो प्योर पब्लिक है, वो भी पब्लिक सेक्टर है, पैसे गवर्नमेंट देती है, लेकिन वहां आउटकम्स देखे जाते हैं। और जब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब और सिंध के, वो उससे 5 to 6 टाइम्स कॉस्ट लगाते हैं, और आउटकम्स जो हैं उनके उनसे आधे भी नहीं। तो बात ये है, मैं तो ये कहता हूं कि जब आपके पास ये सिंपल एग्जांपल है, आई हैव बीन सेइंग कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बंद करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन तरह के या फिर वो जो TCS वगैरह है, इस तरह के प्राइवेट सेक्टर से काम लेना चाहिए। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी को हमने इतना मतलब गवर्नमेंट सिस्टम को इतना खराब कर दिया है, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर रहे, उसको और खराब कर रहे हैं। ठीक ठीक। That's the way to move forward. We have success examples, Nadeem, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखें यार, 168 जो रैंकिंग है, उसके बाद तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए ना। नहीं, हमारी आंखें नहीं खुलती असद साहब, हमारी आंखें नहीं खुल सकती। हमें जूत भी पड़ जाए, हमें कुछ भी हो जाए, हमारी आंखें नहीं खुल सकती। ये छोड़ दें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, माइंडसेट की बात है। जी सलमान शाह साहब, मुझे बताइए, ये माइंडसेट की बात करते हैं, पर मैं माइंडसेट बाय नहीं करता, बिकॉज माइंडसेट भी चेंज हो जाता है दुनिया का। आफ्टर ऑल मुल्लों ने हमारा माइंडसेट चेंज किया, हमें फोर्स किया, हमने अहमदियों को मारा है, हमें फोर्स किया, हमने बहुत सारी बातें पीछे गई हैं, तो माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो हमारे मुफक्किर भी कोशिश कर सकते हैं माइंडसेट चेंज करने की, पर हमारे मुफक्किर चेंज नहीं करते माइंडसेट। सलमान शाह साहब, आपका क्या इस पे लास्ट वर्ड है? देन वील मूव ऑन टू 2 अदर टॉपिक्स दैट आई हैव। देखो नदीम, बात ये है कि ये जो बजट आया है, और इससे पहले कई बजट्स आए हैं, और हर बजट में हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं और अवाम की बड़ी उम्मीदें होती हैं, और वो कहते हैं जी रिलीफ नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं, और फिर वो एक साल गुजर जाता है और फिर एक नया बजट आ जाता है। तो until I think the people say कि we have had enough, जब तक, अभी तो हम 4 बंदे कह रहे हैं ना we have had enough, जब ये 20 करोड़
25 करोड़ जो हमारे हैं लोग, वो जब देखेंगे कि यार सारी दुनिया आगे निकलती जा रही है और हम 168 नंबर पे हैं, और हम एक पंखा भी सही नहीं बना सकते और जूता भी सही नहीं मंगा सकते, और हर चीज जो है वो हम बाहर से मंगाते हैं, और डॉलर्स भी नहीं है हमारे पे, और गुर्बत है और सारा कुछ है। तो आई थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये इस नैरेटिव को लेके चले और वो कामयाब हो जाए, और फिर वो अपने साथ एक पूरा मैनिफेस्टो लेके आए चेंज का, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी अब बनाओ, और उसमें आप ये तुम बताओ कि जी ये रिफॉर्म एजेंडा हमने करना है, तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कदम बढ़ाओ नदीम, हम तुम्हारे साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू By the way, मजाक के अलावा एक सेकंड, लेट्स जो मजाक के अलावा हमारे Let's मुल्क move का on जो to the- निजाम है ना, वो अगर अवाम ने नहीं उसको ठीक करने की कोशिश की तो वो ठीक नहीं हो। देखिए, अवाम ठीक करने की कोशिश करेगी अगर हम आइडियाज देंगे। अगर हमारे पास आइडियाज ही कोई नहीं तो अवाम क्या करे? अगर हम नहीं सारा आइडियाज, हमें पता है कि रिजल्ट बड़े खराब हैं, हमें सब पता है कि रिजल्ट्स बहुत खराब हैं, एंड अवाम डजंट केयर। अवाम को पता है कि दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है, अवाम को पता है कि चीनी जो है वो साइकिलों से चले थे और अब ठीक है वो शाह जी। ड्रोन्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अवाम को पता है कि क्या दुनिया ने किया है। अवाम वांट्स, इफ द अवाम वांट्स द सेम, then it will have to force the change. Okay. Let me now say a few words. देखिए जी, I fully agree with you. I think our job is to provide the ideas for change. I think हमने ideas for change दिए नहीं है। अवाम जो है, अवाम बजट को सोचती है, बजट एक दुनिया का हिस्सा है, बजट बड़ी चीज़ है। फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आता है, वो बड़ी तालियां बजाते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर नया बाहर से आ गया। सिटी बैंकर्स, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है, सिटी बैंकर्स इस मुल्क को रूल करते रहे फॉर द लास्ट 40 years एंड वी हैवंट इवन सीन इट। सिटी बैंकर्स एक माफिया है। इट इज़ प्रॉब्ली एन इक्विवेलेंट माफिया टू द DMG, कि वो हर ओहदा लेते हैं, हर बैंक के बोर्ड पे हर ओहदा लेते हैं। नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ABN एमरोज से थे, ये he was not in City Bank. Shahji, Citibank is just a term that I'm using for all these characters. Can we have a conversation? वरना पर लोग बोर हो जाते हैं। नहीं, People मैं don't तो want to बहुत listen. सीरियस हो जाते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, जरा नहीं, ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत लाइट टच भी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो सीरियस भी हो जाए, बिकॉज इट्स गॉट टू लाइट अ टच। ठीक है, अब मसला ये है जी कि सिंपल बात है ये, मनमोहन सिंह जब रिफॉर्म लेके आया था इंडिया में, तो वो अपने साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लेकर, सिर्फ मोंटे कार्लो वाली नहीं था। अभी तक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का पास सुमन बेरी है, ठीक है। और मनमोहन सिंह जो लेके आए रिफॉर्म, उसके अंदर अभी तक इंडियन इकोनॉमिस्ट चल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिस्ट मोंटे कार्लो वालिया के अलावा दे आर स्टिल सर्वाइविंग इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट की पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा साख है, हमारी नहीं है, बट दैट्स इट। बट आई वांट टू रेज अनदर सब्जेक्ट। ये टैरिफ रिफॉर्म जो है, ये लाइक शाहिद, आई सैल्यूट इट टू। Does anybody know about this tariff reform? Can you tell us what this tariff reform is? This is a very important reform if it has happened well. Anybody knows नहीं it? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी रिफॉर्म है, बट सिर्फ एक अनाउंसमेंट आई है कि 3 स्लैब होंगे, 5%, 10% एंड 15%, बट देयर इज नो टाइम लाइन टू इट, सो मे बी असद नोज बेटर। असद बताओ। Can I say something very शायद- quickly? जी जी देखो, कुछ चीजों में अभी उनने किया है, ऑफ कोर्स इट्स इन द राइट डायरेक्शन। द इशू इज, आई स्टिल, मैंने जिक्र भी किया कि मैंने स्टेट बैंक में किसी से पूछा कि भाई आपने देखा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है on the balance of payments, the likely exchange rate, and if what happens to the exchange rate, what is likely to happen to inflation and so on. और ये जो है ना कि 5 साल में हम कर लेंगे, या जिस मुल्क में यही नहीं पता सुबह क्या होना है। सो द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि एक्चुअली कोई रिपोर्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, या जिक्र किसी ने नहीं बताया कि यार वो देख लो, उन लोगों ने इसकी इम्प्लीकेशंस पर काम किया हुआ है। मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे बता दें। यस, इंटेंशन वाइज तो मुझे नजर आई है, कुछ चीजों पे हुआ भी है, whether they will be implemented or not. देखिए ना, to give you a small example, और I'll stop after this. उसमें ये कहा गया कि ये होगा, लेकिन FBR will decide on the basis of each transaction. ये फाइनेंस बिल में असद will bear me out कि जी हम ये वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सो इन अदर वर्ड्स, एक चीज हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म हमें थोड़ी देर बाद ही समझ आएंगे। सो आई विल स्टॉप। ब्रॉडली प्रोग्राम जो है ना, वो IMF के साथ इसमें एग्री हुआ है कि ओवर नेक्स्ट 5 years or so
आपने टैरिफ को ग्रेजुअली और कम करना है, और अपर लिमिट्स दी गई हैं। ऑब्वियसली विद इन दैट थोड़ी ज़्यादा लीवरेज है, तो ब्रॉडली रिफॉर्म उसकी डायरेक्शन तो मेरे ख्याल में ठीक है वो। लेकिन द पॉइंट इज दिस रिफॉर्म अलोन, जब आपके पास जो विदहोल्डिंग टैक्सेस और सेल्स टैक्स 18%, 19%, और फिर डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो भी साथ नहीं करेंगे, तो फिर इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी सलमान साहब। नहीं, आई थिंक कि ये बिल्कुल सर ने भी सही बात की, शाहिद ने भी की, कि ये आईएमएफ की एक रिक्वायरमेंट आ गई है और उसकी हमने खाना पूरी कर दी है। एंड शायद ने आपको ये नहीं बताया कि स्टेट बैंक ने कहा कि जी फिक्र की कोई गल नहीं हैगी, असि किसी दी एलसी खुलन ही नहीं देनी। ये मैंने तो तो कहा था कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का पता कोई नहीं कि क्या होगा। सो वो नलके के ऊपर वो जो टूटी है ना उसको टाइट करना, तो वो गवर्नर स्टेट बैंक 1 मिनट में कर सकता है। तो वो सारी पॉइंट इज दिस कि विल इट वर्क और नॉट। आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बिकॉज जो बात वहीं आ जाती है कि आपने जब तक अपने ज़हन में ये बात हिफज नहीं कर लेनी कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी नहीं चल सकती, पाकिस्तान हैज टू गो टू अ मार्केट इकोनॉमी, पाकिस्तान हैज टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस फॉर द मार्केट इकोनॉमी, दिस इज विच मीन्स के आपने जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं और एलोकेशन डिसीजंस हैं ये सारी की सारी मार्केट पे छोड़नी है, और रेगुलेशन जो है वो सिर्फ मार्केट फेलियर के लिए होनी चाहिए, नथिंग मोर than that. So very lightly regulated and एक मार्केट इकोनॉमी बनाएं। आप 30 साल हो गए हैं, आपने इसके ऊपर बड़े बड़े वादे किए हुए हैं कि हम करेंगे, लेकिन किसी ने होने नहीं दिया। और वो किसी ने हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी बनाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी घर जाएगी। अगर मार्केट इकोनॉमी नहीं बनाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी और बढ़ती जाएगी, आपके टैक्सेस और बढ़ते जाएंगे, आपका निज़ाम और खोखला होता जाएगा, लोग और गरीब होते जाएंगे, बच्चे स्टंट होते जाएंगे, और ना हम कंपेटिटिव हैं ना compete कर सकेंगे। दुनिया में हम compete कर ही नहीं सकते। सो आई थिंक एक एग्जांपल हम ले लेंगे, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अपनी मॉडर्नाइजेशन करके उसने काम किया है, तो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है ना, तो वो मॉडर्नाइजेशन ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी कि वो मार्केट फोर्सेस और वो इंसेंटिव्स के साथ, आपके इंसेंटिव्स ठीक होंगे तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक सहमत में चलेगी। और पहला स्टेप है कि मार्केट इकोनॉमी बनाएं, और उसके बाद देखें कि क्या मसले आते हैं, कि आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन होती है कि नहीं, टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं, लेकिन बुनियाद जो है बीज आपका सही होना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, एक और साइड पे जरा मुझे बताएं। वर्ल्ड बैंक ने एक पॉवर्टी का एस्टिमेट निकाला है जो कह रहा है 45% पॉवर्टी है, कि पॉवर्टी बढ़ गई है इस मुल्क में। आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स ऑन दिस। शायद। देखिए, बात तो ये है कि उन्होंने तो 2014-15 को लेके उस पे वो लगा दिया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसके बाद आप कह दें कि जी वो जो होनी चाहिए लाइन, वो मैं अगर थोड़ी सी बढ़ा दूंगा तो प्रॉपर्टी रेट और बढ़ जाएगा, वो क्या मसला है, वो तो बड़ा आसान है। तो मेरे कहने का मतलब है, बट इन फेयरनेस हमने भी अपनी उसके बाद से हम लोगों ने भी दोबारा सर्वे नहीं किया टू गेट सम आइडिया एज टू व्हाट इज हैपनिंग। एंड आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट कि ये हमें पता तो चले कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन टू बेस्ड ऑन आवर ओल्ड जो पॉवर्टी लाइन के हमने बेंचमार्क्स रखे हुए हैं कि पॉवर्टी की पोजीशन क्या है, इफ नथिंग एल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ द मिनिमम वेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस हद तक आई नो आपके व्यूज क्या है, बिकॉज आपने कहीं जिक्र किया हुआ है कि बुनियादी बात यह है कि यार 2014-15 का आप डेटा लेते हैं, उसके बाद आज के बेंच लाइन डाल देते हैं, तो बेंच लाइन में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा तो फिर मेरा ख्याल है तो 60-70% तो हो ही जाएगी पॉवर्टी। तो फिर बीआईएसपी को बढ़ा सकते हैं, तो यही होगा, और क्या कह सकते हैं। देखिए नहीं, ये आई थिंक कि एक बात बड़ी क्लियर है कि पॉवर्टी डेफिनेटली ऊपर गई है। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर जगह पॉवर्टी नजर आती है, तो खुशहाली तो नजर नहीं आ रही। आपके घर के मुलाजिम जो हैं वो डेसिमेट हो गए हैं, हालांकि वो उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट इन दैट सेंस मिली हुई है, लेकिन
जब आपके रूरल इनकम्स जो हैं वो प्लमेट कर गई हैं, आपने कम अज कम जो overseas Pakistanis की remittances are the only factor which you can say is कि अगर वो सही हैं तो वो शायद poverty alleviation कुछ कर रही होंगी, लेकिन I mean everybody doesn't, we don't need the World Bank to tell us that half the country is poor. I think 75% of the country is poor. Only maybe 5 or 10% are having a jolly good time, but the rest of the country is in shambles. So देखिए, I don't think कि ये हमें इस पे ज्यादा बहस करनी चाहिए. गुर्बत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान is a poverty ridden country. जी असद साहब। नहीं, वो तो ऑफिशियल जो ग्रोथ फिगर्स हैं उसको भी अगर आप देखें, एवरेज पिछले 3 साल की 1.5 1.6%, एक आध साल जो है जब बढ़ जाता है ग्रोथ तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो जाता है। उससे पहले कोविड आया, फिर फ्लड 2022 के जो फ्लड्स आए हैं, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से, और फिर पिछले 2 साल में आप देखें ना, एक एस्टिमेट प्रोबेबली वो एग्जैजरेटेड हो शायद, ये जो वीट में हुआ है फार्मर के साथ, दे हैव लॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ रुपीस, यू नो। और फिर जब सारे क्रॉप्स फेल हो गए हैं आपके, 13% डाउन है ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से भी, तो ये तो सिर्फ आपकी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट जो कह रही है, आप ये सोचे ना कि इन 21st सेंचुरी हम लाइव स्टॉक पे चल रहे हैं, यानी लाइव स्टॉक इज 15% ऑफ योर जीडीपी एंड मैन्युफैक्चरिंग इज 11% ऑफ द जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे बताएं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पॉवर्टी है, होगी, जाहिर है। ठीक है, तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है ना। ठीक है जी। बट शायद लास्ट कमेंट फ्रॉम यू के जी, मुझे ये लग रहा है कि मेरा तो ख्याल है पॉवर्टी गिर गई है इस मुल्क में, बिकॉज इनफॉर्मल मार्केट ने बड़ा हमें बचाया हुआ है। जो मैं देखता हूँ कम से कम कि खरीद और फरोख्त तो बड़ी अच्छी चल रही है। केस इन पॉइंट, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिलों की डिमांड बहुत है। केस इन पॉइंट इवन थिंग्स लाइक यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स जो हैं या नेस्ले की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बहुत डिमांड है। आई मीन नेस्ले इज ग्रोइंग एट 25-30% पर ईयर, एंड इवन प्लेसेस लाइक ये जो फ्रेंचाइजेज हैं लाइक मैकडॉनल्ड्स वगैरह ग्रोइंग रैपिडली। सो क्वाइट फ्रैंकली मुझे तो नहीं लगता पॉवर्टी गिर रही है, बट दैट्स थैंक्स टू द इनफॉर्मल इकोनॉमी। और जो हमारे इकोनॉमिस्ट शायद जैसे जो चाहते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को मारते हो, आप बताइए बताइए, शायद गो अहेड, ओवर टू यू। देखो वेरी क्विकली, ये कहना कि जी इफ यू आस्क द रिटेल सेक्टर दे हैव बीन हिट, यू आस्क नेस्ले, आपने मिसाल दी है, उनके वॉल्यूम्स आर डाउन है, तो ऐसी बात नहीं है। एंड सम ऑफ द नॉर्मल रिटेलर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, they have actually moved down to lower, so their mix of products has also changed, they've come to lower value. So all I'm saying, इसमें उस हद तक मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, और मैं सलमान और असद से एग्री कर रहा हूँ कि देखिए फर्क जरूर पड़ा है ओवर द लास्ट 3-4 years। कम तो आई डाउट पर्सनली, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो 45% हो गया, आई डिसएग्री दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि इट हैज बिकम मच टफर। और अगर ये 40-50 कितनी मैं अग्री कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ लॉट ऑफ देम आर बंचिंग अराउंड द पॉवर्टी लाइन इन माय ओपिनियन, एंड अ लिटिल शॉक, पर्टिकुलरली अ ब्रेड अर्नर जो फैमिली का अगर बेचारा बीमार हो गया ना, तो दे विल जस्ट they will not be able to survive. So वो जो मेरे लिए वो sensitivity वाली जो part है ना, कि people are really bunching around the poverty line is something which worries me enormously. और पिछले 2-3 साल में इससे बड़ा फर्क पड़ा है मुझे और आपको भी अब फील होता है कि because of inflation and so on, तो लोगों के हाथ बड़ी बुरी तरह खिंच रहे हैं। Yes, जैसे सलमान याद करा रहे हैं हमें कि रेमिटेंस की वजह से, and you see one of the reasons why remittances have increased कि वो लोगों को यहाँ अब जरूरत है तो वो बेचारा वहाँ से भेज रहा है, एंड रियली और उसके लिए भी मुश्किल हुई है बिकॉज वहाँ पे भी इन्फ्लेशन कम नहीं है जहाँ भी है। सो सम ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक वी, एंड बट टू समराइज आई थिंक वी नीड एन HIS, अभी ये दोबारा कर लिया जाए, पता तो चले कि क्या हो रहा है। और ठीक है, बेंच लाइन वो रखी जाए, बेंच मार्क वो ही रखी जाए ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। बट आई एम रियली वरीड। फाइनल क्वेश्चन, हमारी
इन्वेस्टमेंट रेट जो निकली है इकोनॉमिक सर्वे में वो 13% है, ठीक है। और आपको पता है हम सिर्फ, ये भी ओवरस्टेटेड लगती है यार मुझे, overstated। 13% नहीं है। तो ये बताइए अगले साल का फोरकास्ट करें, ग्रोथ रेट 2.6, इन्वेस्टमेंट रेट 13%. How do you see growth projections going forward? Will this budget increase investment? Will it increase growth or not? आई कांट सी हाउ। देखे ना, बात ये फॉर्मल सेक्टर, अब कोई पता नहीं ना कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या कर रहा है, बात वही है। फॉर्मल की हद तक तो हमें अंदाजा है कि वो ग्रोथ, एंड दे आर नॉट गोइंग टू पुट इन, फ्रैंकली दे आर नॉट गोइंग टू पुट इन मनी। तो आपके सामने ये एफडीआई वाले, अगर आप एफडीआई के साथ बैठा हुआ है, ही नोज दिस, कि वो फाइजर भी चला गया, वायथ भी चला गया, वो मुझे पता है नोवराटिस भी बेच रहा है, सो यू नो रफान इज ऑल्सो in the business of wanting to sell out and so on. So कुछ हद तक तो हमें पता है कि जी ये नहीं होगा। सो जैसे सलमान कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट रेट लुक वेरी हाई, बिकॉज डिपेंड कर रहा है ना। अगर आप पीएसडीपी के नंबर्स आप ये ले लें कि जी पिछले साल का बजट ले लें, तो इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी लगती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनफैक्ट इट्स मच लोअर इवन ऑन द गवर्नमेंट पार्ट। सो मैं सलमान से एग्री कर रहा हूँ कि 13%, बट द प्राइवेट सेक्टर पार्ट क्या होगा? आई वुड हैव थॉट नॉट मोर देन 6-7% anyway. प्राइवेट सेक्टर की तो 6-7 मुश्किल से 6-7 होगी, और मुझे आगे चल के नजर नहीं आता कि वो उस पे क्या इंक्रीज आ सकता है। आई थिंक अगर उतना भी रह ले तो बड़ा मुश्किल नजर आता है असद, बिकॉज इन द प्रोफेशन एंड हैज दीज कस्टमर्स। आइडली अगर शब्बर होते तो ही वुड हैव बीन एबल टू यू नो गाइड अस बेटर कि वो बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, द पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू वेट की गेम है, घबराए हुए हैं, एफबीआर से घबराए हुए हैं। दे रियली वुड रादर गो एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स रादर देन एक्सटेंड देयर ओन फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। मुझे तो यही नजर आता है। असद, सलमान would be able to guide us better. नदीम, आप एनवायरनमेंट देखें ना, आप अगले साल की अगर आप बात करें, एक तो है कि दुनिया इज इन टर्मोइल। आपके बॉर्डर पे ईरान इजराइल की जंग हो रही है, आपने अभी जंग की है हिंदुस्तान से, अभी वो हम कहते हैं वो पॉज में है, वो किसी वक्त भी चल सकती है। So when we look at Pakistan and we look at the external conditions, we look at the internal conditions, तो investment कहाँ से आएगी? I mean, who would be doing? अगर कोई आएगी तो वो बड़ी दो नंबरी किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें पाकिस्तान बड़ा माहिर है और वो कर लेता है ये काम। और आजकल हम बड़ी बात सुनते हैं उन चीज़ों की कि जी इतने मेगावाट बिजली हमने कर दी है, और इसके बाद लोग आके यहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बट फॉर डेटा सेंटर्स यू नीड लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। यू डोंट नीड कि आपके ऊपर मिसाइल भी चल रहे हैं और ऊपर से ड्रोन भी आ रहा हो और फिर आप जंगों में भी पूरी तरह मुलव्वस हो। So I think our internal and external environment is absolutely not conducive to investment, and to hope कि ये investment आ जाएगी तो ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, और domestic investor is not investing, he is not borrowing from the banking system, जिसको पुराने ज़माने में तो वो भागते थे बैंकों के पास, तो अब वो नहीं जा रहे। That shows you the impact on the investment climate, or cost of doing business is worse and ease of doing business तो है ही नहीं है, हमें पता है। So I think it is and it is showing up कि अब दुनिया में हम I think अगर हम वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 168 की बात कर रहा है, तो पर कैपिटा इनकम भी हमारी 168 नंबर पे है ना। तो अगर एक बड़ा मोटा सा नंबर ले लें तो पाकिस्तान is now probably the most among the most poor countries of the world. अगर सही तरह से कोई एनालिसिस करे तो that is where we will stand. जी, असद मेरा थोड़ा सा व्यू, while agreeing with you, environment जो है वो तो काफी एडवर्स है, बट जो ग्रोथ जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है 4%, देखें ऑन ए वेरी लो बेस 13% नेगेटिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी अनयूजुअल। तो एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ द लो बेस ग्रोथ बेहतर हो सकती है।
कुछ एक इनहेरेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में मेरे ख्याल में पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर में, मिनरल्स में, और प्लस ये है कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आ गए हैं, जिसपे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स ऑब्वियसली अभी भी इन्वेस्टमेंट जो हम कह रहे हैं रिपेलिंग कल्चर है, लेकिन अगर कुछ और इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो लोग हर और पैसा भी बहुत बाहर जा रहा है। एक वजह जो है, लोग यहाँ पर अदरवाइज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन आई थिंक एट 8 to 10% इंटरेस्ट रेट, फिर आई मस्ट से कि स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने कुछ एसएमईज के लिए स्कीम्स लेके आए हैं 6% इंटरेस्ट रेट पे। तो ये इन फैक्टर्स की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द लो बेस, एक साल आफ्टर मतलब 1.4%, 1.3%, 3 years, तो फिर एक साल जो है आप 4% पे मेरे ख्याल में ग्रो कर सकते हैं, विच विल नॉट बी अ वेरी बिग थिंग। ओवरऑल आपकी जो है ना, अगर 4% एक साल में आती है आफ्टर 4 years, तो एवरेज तो आपकी वही 2-3% बिलो पॉपुलेशन ग्रोथ ही रहती है ना। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ग्रोथ रेट जो है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट मेजर्स बट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कंडीशंस, ये शायद हम 3.5% या 4% ग्रोथ अगले साल आ जाए बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी लो बेस। Very good point, Chi. Let's end on नहीं, that. I think वो livestock का share of the economy will certainly go up, and वो तो वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वो भी अज्यूम कर रहा हूँ ना। और वो एसएमई का शेयर जो है वो 8% से हो सकता है 10% हो जाए, और बाकी भी स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो है माशाल्लाह बड़ा इनोवेटिव है, तो 4.5% तो डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन अवाम की जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो। Chaleji, thank you very much. Let's leave it till next week. Thank you, folks. Very good points. Mashallah, you've commented on the budget, unimaginative budget. Tax stagnation hai, weaponization of taxes hai, and this preoccupation with taxes kind of reminds me of the Sheriff of Nottingham. कि शेरिफ ऑफ नॉटिंगम जो था वो हाथ मारता रहता था, टैक्स मारता रहता था, अंटिल रॉबिन हुड आ गया, उसने कहा यार इसको चोरी करो। तो हमें भी कुछ शायद रॉबिन हुड चाहिए जो शेरिफ को से चोरी करे वापस, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। बाकी आपने कहा कि टैरिफ्स का निज़ाम बड़ा अच्छी बात है, आई थिंक होना चाहिए, बट वेदर होएगा पूरा कि नहीं ये हमें पता नहीं, क्योंकि डिटेल्स नहीं मिली हुई। पॉवर्टी आप लोग कह रहे हैं कि बढ़ गई है, तो फेयर इनफ, चलो। एंड देन यू से कि ग्रोथ का आउटकम जो है शायद बढ़ जाए, असल साहब द पॉइंट, बट ओवरऑल ये नहीं होगा कि हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ हमें जाना चाहिए, विच मीन्स कंसिस्टेंट 7 to 8% ग्रोथ टू एम्प्लॉय आवर यूथ, वो नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच फोक्स, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज। हाफिज। Hafiz.